Shobit, do one thing. Just share your screen first of all. I have given the Okay. permission to share your own screen with us. Okay, ma'am. GS Modern students, watch it carefully how the values of color sensors will be reflected in our application. Yes. You see here, this is just click on the port view option. Arrow lekar jao. हाँ, yes, this is the port view option where you can check your reflected values with the color sensor, as well as you can check how many motors or how many sensors you have added in the robotic body. You can check it here also, and is it working or not properly. So click just put your color sensor on the black line first of all. Yes, black line. Now in on white. Yes, you can see the values like 19, 20. It is frequently changing. शोभित रोबोट को इधर उधर मूव करो, व्हाइट पे ब्लैक पे मूव करो. पहले ब्लैक पे है 20, व्हाइट पे देखिए दैट इज 42. जैसे ही वो ब्लैक पे टच करता बाहर करता है, व्हाइट पे 44, 43 ये सब आ रहा है. और जैसे ही वो व्हाइट पे के क्लोज लेके जाएगा, सॉरी ब्लैक के क्लोज लेकर जाएगा, ये वैल्यू will be 9, 8, 10 like this. So you have to put the your color sensor on black, and after that on white. Then you have to sum up the both values, and after that you have to divide the sum by 2, so that you can put the average value here. Now you can show the output, how robot will work. Just play your code and you can see the output. It is following only and only black path. Okay, is it fine for a GS Modern class? Now you can do your work. Okay, Shobit, just stop it now. I'm asking to GS Modern School. Is everything is clear now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So you have to do two things. First, line follower, and second one is regarding dismantle and assembling task. Whatever we have already discussed in starting of the class. Okay.
Shobit, just stop your screen. और अभी इनको स्ट्रेट वाला, जो भी स्ट्रेट और लेफ्ट रोटेट वाला कोड बताया था ना, उसको और एक बार अपनी स्क्रीन पर कॉपी करके और उसको आउटपुट और शो कर दो, ताकि ये फिर उसको दोनों टास्क को आज ही कंप्लीट करके वीडियो शेयर करेंगे। मैम कौन सा कोड? दिस वन, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। दिस वन। One thing more, GS modern class, you have to check the ports in the code as well. Like for example, you have add your motor, large motor with port A, for example, and C. So you have to edit here or you have to rechange here by A in whole code. Otherwise, your robot will not perform any single task. So it should be keep in your mind. Shobit, do fast so that we can discuss our next program. ठीक है नहीं मैम ये कोड तो रेडी हो गया। Okay, show them the output only because code is on the screen. हाँ. Firstly, a robot will go forward. Just start it. Yes, and then it will take a left turn and rotate. Okay? Just repeat again, Shobit. आपने ये रोटेट वाला पहले लगाया है क्या कोड? चेक करो. नहीं मैम पहले तो नहीं लगा। पहले ये टर्न वाला है ना? हाँ पहले तो 2 सेकंड तक स्ट्रेट है, उसके बाद फिर टर्न है, फिर उसके बाद फिर डिग्री है 36 डिग्री का मूव करेगा। ठीक है, अब रन करो. ठीक है, डिग्री वाला ब्लॉक हटाओ जरा और फिर रन करो. ठीक है. लेफ्ट टर्न ओके है और डिग्रीज में वो रोटेट कर रहा है. ठीक है. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आप ये वाला चेक कर बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्ट्रेट जाएगा, लेफ्ट टर्न लेगा 2 सेकंड के लिए, पूरा 2 सेकंड के लिए, इसीलिए वो पूरा कंप्लीट रोटेट होकर लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट की साइड रोटेट होकर के आ रहा है और फिर थोड़ा स्ट्रेट मूव कर रहा है. ठीक है.
Is it clear now? Yes, ma'am. ओके, तो आपके दोनों कैटेगरीज का टास्क कंप्लीट हो चुका है जो आपको आज परफॉर्म करके दिखाना है। अब हम बात करेंगे महिमा स्कूल से। So this is our mat, Mahima school. Yes or no? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। This is our mat. Correct? So your robot will come from the start and finish area, यस मैम। and it will collect a black object जो बिल्कुल उसके पास में है, and then it is following black line, and then it will collect a red waste object, वापस आएगा, स्ट्रेट जाएगा, रेड में और ब्लैक में ड्रॉप करेगा। ये टास्क हमें परफॉर्म करना है। Am I right? यस मैम। So for that, this is the code. This is a medium motor role जो मैं आपको बताना चाह रही थी। Listen carefully. आपने जो मीडियम मोटर फ्रंट पे अटैच किया है वो कैसे काम करेगा? मीडियम मोटर को आप सेलेक्ट करेंगे ऑन फॉर सेकेंड्स, ओके, और उसमें आप जो पावर है दैट 20 देंगे और उसको 1 सेकेंड के लिए आप क्या कराएंगे? टर्न कराएंगे नीचे की तरफ, डाउन साइड। ठीक है, आई विल शो यू वन थिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Yes, one medium motor is here. Like for example, if I want to grab my object and we need to put the same object upward, जो आपने उसमें आगे ग्रैबर बनाया है आप उसको अप करना चाहते हैं, तो वहां पर आप नेगेटिव वैल्यू यूज करेंगे स्पीड की। और अगर आप उसको डाउन करना चाहते हैं, आपने ग्रैब कर लिया ऑब्जेक्ट, अब आप उसको बंद करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है? यस मैम। हम्म, आपका ग्रैबर रेडी है? मैम अभी रेडी नहीं है। रेडी नहीं है, नो इशू। अब देखिए मैं आपको कोड समझा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे और आप सेम कोड को फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग करके ट्राई करें। इनिशियली क्या यूज किया है? मूव टैंक, राइट, ताकि आपके दोनों मोटर्स रनिंग मोड में रहेंगे। एक की स्पीड आप, अगर आप सीधा स्ट्रेट चल रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव देखो। अभी नॉर्मली एक मूव टैंक लगाओ इस पर, शोभित, इसमें मूव टैंक लगाओ ऐसे ही इसी स्ट्रक्चर में, और सेम कोड लगाओ, ये वाला मूव टैंक लगाओ, दोनों की स्पीड रखो 50-50 और रोटेशन 2 डालो और इसको ऑन रखना और रन करके दिखाओ पहले, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। फिर एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव रखना, तो वो क्या करेगा वो मैं आपको, अलग अलग कोड हमें नहीं बनाना पड़ेगा उसके लिए, इजी हो जाएगा। लाइक
ये अभी स्ट्रेट चलेगा जब हमारी दोनों की पावर पॉजिटिव होगी। जिस भी साइड आप नेगेटिव डालोगे वो उस टाइम उस तरफ टर्न लेगा। ठीक है, रेडी करो ये वाला कोड और ये वाला कोड। पहले सेलेक्ट रन करना इतना, इसको मत करना सेकंड ब्लॉक को। मैम फर्स्ट ब्लॉक तो हो गया। स्क्रीन पर शो करो, कैमरा ऑन करिए। हम्म मैम स्क्रीन के लिए अलाउ कर दो। नहीं नहीं, आई एम सेइंग आउटपुट शो करिए आप। हम्म सीधा स्ट्रेट रखो बिल्कुल। और अब सिर्फ सिर्फ ये वाला कोड रन करना है, सिर्फ इतना कि मूव टैंक विद 50-50 स्पीड एंड 2 रोटेशन। तो ये 2 सेकंड के लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रन करेगा, जैसे मूव स्टेयरिंग के लिए यूज करते थे, बट इट विल टेक अ टाइम। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मूव टैंक ब्लॉक एंड फॉर मोर एक्यूरेसी। अब एक ही साथ हम क्या कर सकते हैं, लाइक हमें टर्न लेना है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला कोड अटैच करो अब इसके साथ और उसको रन करो। लाइक एक टायर की पावर नेगेटिव कर दो और देखना आप कौन से साइड पावर नेगेटिव कर रहे हो और फिर वो कौन सा टर्न लेता है। आपका मोटर, अगर आपका ए मोटर 50 है, बी मोटर -50 है, और आपका ए मोटर राइट साइड है, बी मोटर राइट साइड है, क्या है वो सब बताओ मुझे। पहले ये बताओ कि मोटर्स कौन से साइड है। वो तो वायर से पता चल जाएगा ना आपको, कोई आप कंसिडर कर लो उसको। लेफ्ट साइड कौन सी मोटर आ रही है, राइट साइड कौन सी, वो एक एक वायर हटा के देख लो, जो भी आपके पोर्ट व्यू से हट जाएगी पता चल जाएगा कौन सी साइड है वो वाली मोटर। स्क्रीन शेयर करो आप अपनी, मैं अपनी स्टॉप कर रही हूँ। यस, अब अगर आपने कोई एक हटाया हुआ है तो अब कौन सा हटाया है, वो जो भी हटा रखा है वो ए मोटर है। ठीक है, जिस साइड से हटा रखा है, क्लियर है। यस जिस मैम। साइड, तो उस पे ए डाल दो मार्कर से अभी, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो ए मोटर कौन सी साइड आ रही है, लेफ्ट की राइट। मैम राइट साइड। राइट साइड आ रही है। अब आप क्या करोगे, राइट साइड वाली मोटर की वैल्यू -50 कर दो। दूसरी 50 कर दो। अब चेक करो रिजल्ट किधर टर्न लेगा। दोबारा रन करो।
ये जो पूरा रोटेट हुआ है किधर की तरफ से हुआ है? हम राइट की तरफ से हुआ है। ठीक है, तो जिधर हमें टर्न लेना है उधर की तरफ हम नेगेटिव वैल्यू देंगे। अब स्टॉप करो स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसको टर्न दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखो, अब हमारा जो ज्यादा रोटेट हो रहा था वो क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने वहां पर अभी वैल्यू डाली हुई थी 2। अब वहां पे 0.3 कर दो, फिर आउटपुट दिखाओ जल्दी से। और अब की बार हमारा ये राइट टर्न की जगह लेफ्ट टर्न होना चाहिए, तो 50 और -50 कर दो, क्योंकि हमारी मैट पर वो लेफ्ट टर्न की नीड है, राइट की नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम डालेंगे ना, 0.3, 0.4, ये अपनी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। लाइक हमें एग्जैक्ट कितना लेफ्ट टर्न चाहिए अपने मैट पर। ठीक है, क्लियर हुआ शोभित? यस मैम। उसके बाद हमें लाइन फॉलोअर वाला कोड लगाया हुआ है बीच में। लाइन फॉलो करते हुए जाना है, क्योंकि हमने 2 कलर सेंसर लगाए हुए हैं, जिसमें हमने क्या किया है, रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं। जो उसकी एवरेज वैल्यू है दोनों की कलर की, वो 40 है, उसमें से माइनस करेंगे जो भी वैल्यू आ रही होगी उस टाइम कलर पर, और वो स्टेयरिंग ब्लॉक को चली जाएगी 25 स्पीड के साथ। और हम उसको स्टॉप कहाँ करेंगे? जब वो ब्लैक कलर को फॉलो करेगा। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर हम स्टॉप लगाएंगे। एक सेकंड, स्टॉप कैसे लगेगा? कलर सेंसर, कंपेयर और कलर। ठीक है, कलर सेंसर, कंपेयर, कलर, और यहाँ पर हम कलर डाल देंगे ब्लैक। ब्लैक टिक किया हुआ, जैसे ही ब्लैक आएगा वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, टैंक को स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद क्यों स्टॉप किया है ये देखो मैट पर। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब रोबोट जाएगा स्ट्रेट, इधर टर्न लेगा, और इधर टर्न लेके फिर जैसे ही ब्लैक लाइन आएगी वहां रुक जाएगा। रुकने के बाद यहाँ पे उसे क्या करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट उठाएगा। फिर से मोटर स्टार्ट होगी, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। और जैसे ही रेड कलर आएगा वहां स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां से अपने मोटर को डाउन कर देगा। ठीक है शोभित, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, आई डोंट थिंक सो कि हमने डबल सेंसर यूज किया हुआ है। हम नॉर्मल लाइन फॉलोअर वाला कोड लगा सकते हैं जो आपने लगा रखा है। ठीक है, यस मैम।
और फिर सीधा ये वाला मोटर वाला कोड यूज करेंगे अप एंड डाउन का, और वहां से ग्रैब करके सीधा स्ट्रेट चले जाएंगे, स्ट्रेट कोड फॉलो करेंगे। वो करेंगे टैंक से, टैंक से थोड़ा फास्ट होता है और इजी हो जाता है टर्न्स में। ठीक है, स्टेयरिंग ब्लॉक यूज नहीं करेंगे। ओके मैम। ओके, तो आप अपना स्ट्रक्चर रेडी करिए, कोड को स्टार्ट करिए जैसे बताया गया है पाथ को फॉलो करते हुए, और फिर जो भी एरर आते हैं वी विल डिस्कस एट फोन, नो इशू। ठीक है, ऑल ओके क्लियर? मैम। ओके। यस मैम।